Hello, friends, and welcome to Vidigya. This is an important session as far as GK and current affairs is concerned for this year's CLAT Indo Pacific region. For n number of reasons, Indo Pacific region has been in news, and since it has been in news, we will be covering what Indo Pacific region is. We will also take into consideration, take examples, and learn more about military exercises, various agreements that countries have with each other, anything and everything that is relevant from the examination perspective, and that revolves around the region called Indo Pacific region. So we'll start with first and foremost, what exactly is this Indo-Pacific region? So when we look at Indo-Pacific region, we see it is a geopolitical construct. It is not something that exists out there. It is something that has been created by people and scholars, and they consider a certain geographical region and they've given it a name called Indo-Pacific region. All right. So Indo-Pacific region का जो importance है and the way we have been addressing Indo-Pacific region, the way we have been focusing on Indo-Pacific region is pretty much like what used to be Asia Pacific earlier and now what used to be Euro Atlantic before that. So it also marks a shift in geo-economic reality of the world. सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यूरोप और यूएसए के बीच में जब ट्रेड सबसे ज्यादा हुआ करता था इन अक्रॉस द वर्ल्ड, then Euro Atlantic was the heart of world trade. Similarly, Asia Pacific became the heart of world trade when China started emerging, Japan also started emerging, and US started trading with these countries. So Asia Pacific became the heart of world trade. But in last two decades, we find a new construct emerging, and that is Indo-Pacific region. Indo-Pacific geographical region has become really very important. Now, what exactly constitutes Indo-Pacific region? Indo-Pacific region is nothing but the combination of Indian Ocean and the Pacific Ocean and the land masses that surround them. ऑल राइट, पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से जोड़ो और उसके आसपास का जो लैंड मास है इट इज कॉल्ड एज इंडो पैसिफिक रीजन. उसको अगर हम एक यूएस की टर्मिनोलॉजी में बोलें, जो डिप्टी एनएसए ने वहां पे एक बार बोला है किसी कॉन्फ्रेंस में, दैट दे कॉल्ड इंडो पैसिफिक एज कैलिफोर्निया टू किलिमंजारो. कैलिफोर्निया टू किलिमंजारो. कैलिफोर्निया इज व्हाट? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस, and Kilimanjaro is what? Eastern coast of Africa. So western coast of US to eastern coast of Africa, पूरा जो कंस्ट्रक्ट है इट इज कॉल्ड, पूरा जो एरिया है, पूरी जो वाटर बॉडी है एंड द सराउंडिंग एरियाज, इट इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक रीजन. और इस पूरे रीजन में जो भी एक्टिविटीज होती हैं इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट for a lot of major countries in the world, and it is also important for India. So any and every development that happens in the Indo-Pacific region is important from our exam point of view also, because it is important for India. If you see the map, India lies right in the middle of the Indo-Pacific region. Hence, India is an important country when it comes to Indo-Pacific region, and at the same time, Indo-Pacific region is important for India as far as its trade is concerned. We'll discuss that in detail. First, we'll discuss what exactly are, what is the importance of Indo-Pacific region for India and the world. We'll first take some important points related to the importance of Indo-Pacific region for the world at large. So for the world at large, if you see, अगर हम मैप देखेंगे तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नथिंग. ट्रेड जो है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इन द वर्ल्ड वो पानी के रास्ते से, ओशंस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है. हेंस जो इंडो पैसिफिक का जो पूरा रूट है, इंडो पैसिफिक का जो रूट है उसमें कई सारे चोक पॉइंट्स हैं. ठीक है. सो इफ इंडिया इज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम पर्शियन गल्फ, चाइना इज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम पर्शियन गल्फ. ठीक है. तो इसीलिए ये जो चोक पॉइंट्स हम बोलते हैं, ये छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे स्ट्रेट्स हैं. उन स्ट्रेट्स में से वो ट्रेड पास होते हैं, वो शिप्स पास होती हैं, एंड इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे कंडक्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज. All right, so these choke points have strategic and economic and political significance. That is why they are important and they lie well within the Indo-Pacific region. So हम लोग सबसे पहले तीन जो important straits हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है स्ट्रेट ऑफ मैलेका. स्ट्रेट ऑफ मैलेका एसेंशियली ये जो इंडियन ओशन है और यहाँ पे ये जो पूरा पैसिफिक ओशन है, इसको जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ मैलेका. ये एक पतला सा जो स्ट्रिप है, ऑल राइट, बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया के बीच में एक पतला सा स्ट्रिप है. इसके बीच में एक छोटा सा सिंगापुर का भी सिटी स्टेट आता है. तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मैलेका. अगर हम चाइना को देखें तो चाइना के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का भी जो ऑयल का पूरा ट्रेड है
वो आप देखें इस रास्ते से होता हुआ, साउथ चाइना सी से होता हुआ यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्ट्रेट ऑफ मैलेका है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, जो कि अपने आप में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का। एंड ऑफ कोर्स जो साउथ एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं लाइक फिलीपींस है, आगे जापान है, साउथ कोरिया है। So all of these countries, they're dependent on Strait of Malacca and secure sea lanes of communication. If any country decides to stop the sea lanes of communication, या किसी भी रीजन से कोई कंट्री इन चोक पॉइंट्स को बंद कर देता है, then the trade stops. हमने देखा था लास्ट ईयर सुएज कैनाल में शिप थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो कितना सारा नुकसान हुआ था ट्रेड को। तो उतना उसी तरह का सिग्निफिकेंस इस तरह के स्ट्रेट्स का भी होता है। एंड दीज स्ट्रेट्स लाई इन द इंडो पैसिफिक रीजन, हेंस दे आर इंपॉर्टेंट। So for us, for our exam point of view, what we need to remember is first and foremost, Strait of Malacca is in the Southeast Asian part of the world, and it connects Indian Ocean with the Pacific Ocean. All right. The next strait that is important from our exam point of view is this Bab el Mandeb. It is called Bab el Mandeb. Bab el Mandeb. तो Bab el Mandeb connects Red Sea with the Gulf of Aden. आप देख सकते हैं यहाँ पे यमन है और यहाँ पे जिबूटी। तो गल्फ ऑफ एडन, रेड सी फर्दर जाके कनेक्ट होता है कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी में। एंड मेडिटेरेनियन सी इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यूरोप। ऑल राइट, वॉट वी हैव टू रिमेंबर इज रेड सी किस बाबिल मंडप कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है, रेड सी को कनेक्ट करता है एंड गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन। एंड रेड सी का इंपॉर्टेंस क्या है कि आगे जाकर सुएज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी पे कनेक्ट होता है। एंड मेडिटेरेनियन सी जो है इट इज बॉर्डरिंग द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। ऑल राइट, तो ये एक दो जोग्राफिकल लोकेशन हमने पढ़ी जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में लाई करते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन जोग्राफिकल लोकेशंस। लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रिवर्स। तो रिवर्स और जोग्राफिकल जो इंडिया नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर रिवर इन नेपाल। ऑल राइट, तो जोग्राफिकल लोकेशंस जो कि अगर न्यूज में है और इन न्यूज में है तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर पढ़िए, इनको ध्यान से पढ़िए। क्या याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि कोई स्ट्रेट अगर है तो वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट इज इक्वल टू कनेक्ट्स टू मेजर water bodies. All right, so it's a small strip, tiny strip that connects two major water bodies. टू मेजर वाटर बॉडीज को वो कनेक्ट करता है एंड ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉट जस्ट ट्रेड बट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट इज स्टेट ऑफ हॉर्मूज। अब आप ये देखिए, दिस इज पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ की जो 8 कंट्रीज हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये छोटे से पानी के वाटर, इस वाटर बॉडी से, इस स्ट्रेट में से शिप्स पास होती हैं एंड देन दोस कंटेनर्स, दो शिप्स रीच टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एंड इट कनेक्ट्स, कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ। वन इज पर्शियन गल्फ एंड सेकेंड इज अरेबियन सी। ऑल राइट, सो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज अगेन स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया ऑल्सो, क्योंकि इंडिया भी मिडिल ईस्ट से अपना मेजोरिटी ऑयल इंपोर्ट करता है। ऑल राइट, सो दीज 3 स्टेट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडो पैसिफिक रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट दैट वाज इन न्यूज इज ताइवान स्टेट। ऑल राइट, ताइवान स्टेट। ताइवान स्टेट कहां पर है, दो जो लैंड मास है, एक तो चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट है, और ये कनेक्ट किसको करता है, उसके ऊपर ईस्ट चाइना सी को और नीचे साउथ चाइना सी को। ऑलराइट, ताइवान स्ट्रेट, इट वाज इन न्यूज, याद कर लीजिए, ईस्ट चाइना सी और उसके नीचे साउथ चाइना सी को वो कनेक्ट करता है। ऑलराइट, so we have discussed 4 important geographical locations as far as Indo-Pacific region is concerned, and all 3 of them were in news for one or the other reason. So these are important. Just remember the strait, the name of the water bodies that it connects. That is all you have to remember. All right, moving ahead, why exactly is it important? हम देख रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। हमने देखा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेड एंड इकोनॉमी के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए भी आती है कि इट ऑक्यूपाइज 44% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 62% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी एंड 46% ऑफ
वर्ल्ड्स मर्चेंडाइज ट्रेड। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस एज फार एज वर्ल्ड अफेयर्स आर कंसर्न। ऑलराइट, और अगर हम क्लैट का सिलेबस भी देखें तो वर्ल्ड अफेयर्स और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को सिग्निफिकेंट इवेंट्स, ये सारे अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डायरेक्टली रेलेवेंट है। सो अंडरस्टैंड इंडो पैसिफिक रीजन क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उस इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस और जो एग्रीमेंट्स हम लोग ने साइन किए हैं। सो विल मूव अहेड। और क्या है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग। चाइना फैक्टर, दिस हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी बिग फैक्टर दीज डेज। पिछले 2-3 डेकेड के जो मैसिव इकोनॉमिक राइज हुआ है चाइना का, दे हैव आल्सो बिकम एग्रेसिव in their political arena as well. They have started asserting themselves territorially in every area. We frequently hear about साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में उसके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ताइवान, वियतनाम के साथ। तो दिस चाइना फैक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना के राइज के कारण इंडो पैसिफिक रीजन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा कि मलक्का स्ट्रेट, बाबल मंडब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं जिनको काउंटर करना चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया को भी इंश्योर करना जरूरी है दैट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रिमेन्स। So Indo-Pacific region is very important. Another important aspect is Belt and Road Initiative. So Belt and Road Initiative is important from our exam point of view because हमने अभी श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस देखा। श्रीलंका में there is an example of हम्बनटोटा पोर्ट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। इट हैज टू एस्पेक्ट्स टू इट। इट हैज अ बेल्ट एंड अ रोड। बेल्ट इज द लैंड एरिया एंड रोड, क्वाइट काउंटर इंट्यूटिवली दे हैव नेम्ड इट एज रोड, जो कि ओशन में, ठीक है, ओशन में दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देमसेल्व्स एंड वन ऑफ देयर वेज ऑफ डूइंग इट इज व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू ट्रैप कंट्रीज इनटू अ डेट, लाइक द वे दे हैव डन विद श्रीलंका। बहुत ही इजी, बहुत उनको लोन्स बहुत इजीली प्रोवाइड कर देते हैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर, एंड व्हेन दीज कंट्रीज आर नॉट एबल टू पे, व्हेन दे आर नॉट एबल टू रिटर्न दोज लोन्स, then they acquire those lands. That is exactly what happened with Hambantota port also. China has got a lease of 99 years for Hambantota port, which is very strategically located. अगर आप मैप देखेंगे, if you see this map, श्रीलंका का यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट लोकेटेड है। दिस इज राइट बिटवीन द इंडो पैसिफिक ओशन। ऑलराइट, सो हम्बनटोटा पोर्ट जैसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को दे आर ट्राइंग टू एक्वायर देम थ्रू डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। हेंस इंडो पैसिफिक रीजन और उसके आसपास जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। चाइना के राइज के अराउंड ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स बने हैं, फॉर एग्जांपल क्वाड, ऑकस, ये सब जो हम लोग अभी न्यूज में पढ़ते हैं, इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दिस, these two important factors. One is China's rise and another one is Belt and Road Initiative of China. All right, moving ahead, we'll discuss why is it important particularly for India. Look, peace and security in Indian Ocean region. हमने देखा अभी ट्रेड बहुत सारा इंडो पैसिफिक रीजन से जाता है, एंड इंडिया बीइंग लाइंग राइट इन द मिडल ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7500 kilometers. What we realize, what we face is we have at least 50% of our trade passes through the Indo-Pacific region and the Indian Ocean and carries 90% of India's trade and its energy resources. Imagine 90% of India's trade and its energy resources passes through the Indo-Pacific region. All right, so Indo-Pacific region or Indian Ocean region becomes automatically very important from India's perspective. And knowing this in the context of rise of China becomes all the more important. So countering China is also important. China तो rise कर रहा है and very aggressively it's rising, and it is rising at the cost of territorial integrity and sovereignty of other nations. Hence it becomes very important for India to assert itself. All right. फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कुछ जनरल पॉइंट्स है, मरीन पोल्यूशन, इलीगल फिशिंग, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। बहुत पूरा इंडो पैसिफिक रीजन सुनामीज और अर्थक्वेक्स के लिए बहुत प्रोन है, वोल्केनिक इरप्शंस के लिए काफी प्रोन है, साइक्लोन्स के काफी प्रोन है। हेंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड के लिए क्या है और इंडिया के लिए क्या है। दो जो सबसे मेन पॉइंट्स वहां पे उभर के आते हैं, ये वो है, फर्स्ट इस ट्रेड और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें तो राइज ऑफ चाइना and Belt and Road Initiative of China. So these 2 points become really very important, and because of which Indo-Pacific region is frequently in news. All right, and since it is frequently in news, it becomes automatically important from our exam point of view.
All right, we'll move ahead to, now that we have understood that why it is important for India to, manage the Indo-Pacific region and ensure that there is peaceful rise of China and it does not come at the cost of India's trade and economy. We have to take some measures to counter and to ensure India's position remains, important in the Indo-Pacific region and the Indian Ocean region at large. So we can divide the measures taken by India into four parts: strengthening and preserving its role in Indian Ocean region, some foreign policy initiatives we have taken, some partnerships we have entered into, and then we have particularly naval strategy. So we'll take up all of these one by one. Strengthening and preserving its role in Indian Ocean region. So when it comes to strengthening and preserving, first of all, we are already a superpower, military superpower. If we consider ourselves, Indian Ocean region में we are already a military superpower. So the neighboring nations, considering कि China भी वहाँ पर rise कर रहा है, China is rising very aggressively. It is not a peaceful rise. So a lot of nations are very uncomfortable with China's rise. And the only country that can actually pose a risk or pose a threat to China's rise or pose a challenge to China's military power is India. Only regional power that can possibly can challenge China is India. All right, so these smaller nations in the Southeast Asia and South Asia, they look up to India as a net security provider. Okay, so one is net security provider. इंडिया अपने net security provider की इमेज को strengthen कर रही है and preserve कर रही है. दूसरी चीज हम लोग क्या कर रहे हैं? Humanitarian assistance and disaster relief. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन डिजास्टर रिलीफ में वी आर फ्रीक्वेंटली वर्किंग. यहाँ पर आप याद कर सकते हैं ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में जो हमने कंडक्ट करा था. यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड मिशन, रिमेंबर मिशन सागर. मिशन सागर वॉज इंडियन नेवी प्रोवाइडेड फूड आइटम्स, कोविड रिलेटेड मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेडिकल असिस्टेंट टीम्स टू दीज ओशन इंडियन ओशन कंट्रीज. ओके, मॉलडीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कॉमोरोस. तो ये सब आइलैंड्स में हम लोग ने अपने असिस्टेंस जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है कोविड क्राइसिस के टाइम पे हमने प्रोवाइड कराई थी. सो दीज आर वेज थ्रू विच इंडिया reassures these countries that we are right, we are there to protect you, we are there to help you in your hour of need. Okay, इस तरह से we also strengthen our position in the Indo-Pacific region and generally global level पे भी हमारी stature को we get a better place in the global stature as well. All right, early warning and weather forecasting में we are there. Okay, Indian tsunami early warning system. So we early warning centers. So we have a very good, very high standards and top-notch early warning system as far as tsunami is concerned. 2004 में एक major tsunami आई थी. उस tsunami के बाद we established an early warning system और ये early warning system is not just for India, it's for the entire region. All right. So these are some of the ways through which India is strengthening and preserving its position in Indian Ocean region. Next, very important comes developing naval bases. So we have developed some naval bases. कहाँ कहाँ हमने अपने naval base develop किए हैं countries के agreements के through? एक तो सिंगापुर में, alright, आगलेगा मॉरिशस में, दुक ओमान में, चाबहार ईरान में. So we are developing naval bases and we are developing the ports in these countries. ठीक है, तो it's kind of इंडियन ओशन में जो जो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड पोजीशंस है. सिंगापुर हमने देखा मलाक्का स्ट्रेट पे लोकेटेड है. चाबहार इज लोकेटेड राइट नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो ये चोक पॉइंट्स के पास में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको इंडिया डेवलप कर रहा है और अपने नेवल बेसिस धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर रहा है थ्रू बायलैटरल रिलेशंस विद दीज कंट्रीज. ऑलराइट, देन वी हैव कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंट्रीज आल्सो. एक बहुत इंपॉर्टेंट, वी हैव अ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स अरेंज सपोर्ट एग्रीमेंट. रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट विथ फ्रांस. तो अगर RLS करके कोई वर्ड दिखता है आपको, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, वी हैव साइंड इट विथ फ्रांस. फ्रांस का क्या, फ्रांस को वाई फ्रांस इज सो काइंड ऑफ इन्वॉल्व इन इंडियन ओशन रीजन? वो तो यूरोपियन कंट्री है. इट इज इन्वॉल्व इन द इंडियन ओशन रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हमने बात करी ट्रेड, दुनिया भर का इतना मेजर ट्रेड वहां से पास होता है, इसलिए फ्रांस भी इंटरेस्टेड है. एंड अनदर मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फ्रांस इज अ लॉट ऑफ टेरिटरीज इन दिस एरिया. इंडियन ओशन रीजन में देर आर आइलैंड्स लाइक रियूनियन आइलैंड, ऑलराइट, विच इज अंडर फ्रेंच, विच इज बेसिकली फ्रेंच टेरिटरीज इन द इंडियन ओशन रीजन. तो फ्रांस के लिए ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, अगेन पॉलिटिकल सोवरेनिटी के पर्सपेक्टिव से इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रांस ने इंडिया के साथ
रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विच अलाउज इंडिया टू, ये जो जो हमने लोकेशंस की बात करी यहाँ पर, अगर फ्रांस हम लोग रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, तो लॉजिस्टिक्स क्या है, अगर हमारी मान लीजिए सबमरीन्स हैं, हमारी शिप्स हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन में अपनी पेट्रोलिंग कर रही हैं, इफ दे नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस क्या कहते हैं रिफ्यूलिंग के लिए उनको चाहिए, या उनके जो मेंबर्स ऑन बोर्ड हैं उनको किसी तरह का रेस्ट चाहिए, ऑल ऑफ दैट थिंग्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मेंटेनेंस रिपेयर का कुछ काम है, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी कैन डू दैट, एंड वी कैन डू दैट ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस। इससे अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी जो नेवल प्रोफिशिएंसी है उसकी एफिशिएंसी और ऑपरेशनलाइज करना, जो उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है नेवी की, वो और बेटर होती है। ऑल राइट, सो वी हैव कोलैबोरेशन विद फॉरेन कंट्रीज, अ सिमिलर एग्रीमेंट वी हैव विद यूएस ऑल्सो, इट्स कॉल्ड LEMOA, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, LEMOA। ठीक है, ये हमने 2016 में साइन किया था। सिमिलरली हम लोग अपने नेवल स्ट्रैटेजी में हम लोग अपने नेवी को और इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियर ट्रायड का। नाउ वी हैव और न्यूक्लियर सबमरीन भी है हमारे पास, एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। वी ऑल्सो हैव अग्नि 5 मिसाइल विच इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो वी हैव कंप्लीटेड आर न्यूक्लियर ट्रायड। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रायड? न्यूक्लियर ट्रायड के बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, वी ऑल नो। ऑलराइट, तो न्यूक्लियर पावर बेसिकली होता है कि एनी कंट्री दैट हैज न्यूक्लियर वेपन्स और उस न्यूक्लियर वेपन को वो टेस्ट कर चुके हो, तो इट्स कॉल्ड अ न्यूक्लियर पावर। बट न्यूक्लियर ट्रायड होता है, न्यूक्लियर ट्रायड बेसिकली एनी कंट्री दैट हैज 3 कैपेसिटीज, लैंड, एयर और वाटर। जब लैंड, एयर और वाटर तीनों ही जगह से अगर आप मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी रखते हो, देन इट इज कॉल्ड अ कंट्री विद अ न्यूक्लियर ट्रायड, एंड इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन न्यूक्लियर ट्रायड। लैंड में ऑफ कोर्स वी हैव अग्नि 5 विच इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एयर में वी हैव स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स which can carry heavy loads and which can carry nuclear weapon missiles. And recently, we have completed our submarine launched ballistic missile SLBMs also. It is considered one of the toughest things to achieve, but India has achieved that as well. तो न्यूक्लियर ट्रायड हमारा इंडिया का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और न्यूक्लियर ट्रायड में पर्टिकुलरली ये वाटर वाला जो एस्पेक्ट है, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मान लीजिए वॉर के टाइम पे लैंड और एयर, आपके सारे जो मतलब लैंड के ऊपर जितनी चीजें फॉर सम रीजन वॉर में वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं बाय द एनिमी नेशन, यू विल स्टिल हैव सबमरीन दैट विल हैव अ न्यूक्लियर वेपन ऑन इट। that is a difficult technology to achieve, and India has achieved it. India has completed its nuclear triad. तो न्यूक्लियर ट्रायड का एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिए। न्यूक्लियर ट्रायड में 3 चीजें होती हैं, एक तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए आपके पास, दूसरा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, एंड तीसरा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर। देन कम्स मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है? एज द नेम सजेस्ट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे आसपास का जो पानी है इंडियन ओशन रीजन में, कौन सा फ्लीट वहां पे एक्टिव है, कौन सी कंट्रीज अपनी सबमरीन्स को वहां पे चला रही हैं, कौन सी कंट्री अपने फ्रिगेट्स को वहां पे चला रही हैं। जनरली यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट मैरीटाइम डोमेन। ऑल्सो मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस अंडर ओशन, अंडर सी, लाइक बिलो द सी लेवल क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, जोग्राफिकल जो बिलो सी लेवल जोग्राफिकल लैंडफॉर्म्स किस तरह के हैं, so that our submarines can perform well. All of these things comes under maritime domain awareness. Maritime domain awareness में we have established an Indian Fusion Center for Indian Ocean region. Indian Fusion Center is nothing but जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इंडियन ओशन रीजन के से रिलेटेड, उसको सबको एक जगह पे लाकर कोलेक्ट कर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस एनालाइज किया जाता है और उस पर एक्ट किया जाता है। सो वी हैव व्हाट IFC IOR, तो इंडियन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप देख सकते हैं, वी हैव अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। हु इज द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? जी अशोक कुमार। G. Ashok Kumar is a retired Vice Admiral. G. Ashok Kumar has been recently appointed as the first ever National Maritime Security Coordinator. This is an important fact. Please remember this. It is an important fact. G. Ashok Kumar, first National Maritime Security Coordinator. All right, we'll move ahead to military exercises. We'll comprehensively cover these important military exercises. Meanwhile, we should remember exercise Malabar.
ठीक है, हमें क्वाड कंट्रीज पता है। क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहले तक खाली इंडिया, यूएस और जापान मिलिट्री एक्सरसाइज करती थी, विच वॉज नोन एज एक्सरसाइज मलाबार, बट रिसेंटली दे हैव इंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो जो चारों क्वाड कंट्रीज हैं वो चारों मलाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करती हैं। सो वी आर कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइज ताकि हम लोगों के जो इंटर ऑपरेबिलिटी है वो भी इंप्रूव हो। All right, so China is not very happy about it, but obviously these countries have to work on their interoperability in case in future if something untoward happens, they must be prepared for it. Now, next important thing is Indian Ocean Naval Symposium. Indian Ocean Naval Symposium is nothing. Indian Ocean की कुछ countries हैं जो साथ में आके एक naval symposium कई सालों से conduct कराते आ रहे हैं। तो इट्स like 2008 में इट वाज फाउंडेड। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम वाज फाउंडेड इन 2008। तब से वो बायएनली हर 2 साल में एक बार होता रहा है। इट इज एसेंशियली अ फोरम फॉर डिस्कशन। ठीक है, अब 2008 की बॉडी है, हर 2 साल में एक बार होता है। इट इज अ फोरम फॉर डिस्कशन, बट दिस ईयर इट इज इन न्यूज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एडिशन 2022 में गोवा में हुआ है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन नेवल मैरिटाइम नेवल सिंपोजियम का मैरिटाइम एक्सरसाइज। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम में जो अभी तक कंट्रीज एक फोरम बस था जो डिस्कशन का, उसने आज पहली बार, इस साल पहली बार उन्होंने एक मैरिटाइम एक्सरसाइज भी करी है। ऑलराइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए इस पूरे पेज में एक कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर ट्रायड का, ये इंपॉर्टेंट है। लेमोआ जो एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ है। आरएलएस जो एग्रीमेंट है वो फ्रांस के साथ है। वी हैव अ सिमिलर एग्रीमेंट विद रशिया, इट्स कॉल्ड रीलॉस। रीलॉस रशिया के साथ भी हमारा एक एग्रीमेंट है विच इज RELOS। अगेन इट इज अबाउट लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज। वी हैव अ सिमिलर एग्रीमेंट विद सिंगापुर, वी हैव अ सिमिलर एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया एंड अ सिमिलर एग्रीमेंट विद साउथ कोरिया एज वेल। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इंडियन ओशन रीजन की, हमने सबके साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज का एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है। एंड लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज का एग्रीमेंट बेसिकली इट मेक्स ईजियर इंटर ऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमारी नेवी की ओवरऑल बढ़ाता है। इसलिए वो लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के पर्सपेक्टिव से। ऑल राइट, तो ये याद रखिए। जी अशोक कुमार का नाम एकदम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ है। जो भी फर्स्ट टाइम हो रही होती है ना चीजें, ये एकदम से अपने आप ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो जाती है। तो हमने फर्स्ट टाइम नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है, एंड फर्स्ट टाइम जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है उन्होंने भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया है, इसी साल कराया है रिसेंटली, लास्ट वीक ऑफ मार्च में। ऑल राइट, विल गो अहेड। यहाँ पे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की लिस्ट है, ये याद करनी पड़ेंगी। विल बहुत जल्दी से विल डिस्कस देम। संप्रीति है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। मैत्री एक्सरसाइज विद थाईलैंड। वी हैव वज्र प्रहार विद यूएस। वी ऑल्सो हैव युद्ध अभ्यास विद यूएस। वी हैव नोमैडिक एलिफेंट विद मंगोलिया। गरुड़ शक्ति विद इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज विद फ्रांस। धर्म गार्डियन विद जापान। Surya Kiran with Nepal, and hand in hand exercise with China as well. We have a small exercise, military exercise with China also. Simbex with Singapore, Shakti exercise with France. Shakti exercise repeat हो गया ये. Corpat with Thailand. All right. तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, याद हो जाएगा। ये सारी एक्सरसाइजेस इंडो पैसिफिक रीजन में होने वाली एक्सरसाइजेस हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक यूएस और फ्रांस के साथ जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो भी दे रखी हैं। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स इंडिया ने क्या लिया है इंडियन ओशन रीजन को लेकर? हमने सबसे पहले तो एक इंडो पैसिफिक डिवीजन, एक डेडिकेटेड इंडो पैसिफिक डिवीजन बनाया। ये दोनों किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इंडियन ओशन रीजन के लिए भी एक डिवीजन। तो एक स्पेसिफिक डिवीजन जब आप एक प्राइमरी मिनिस्ट्री के अंडर आप बना रहे हो, विच ऑटोमेटिकली टेल्स दैट यू वांट टू हैव अ फोकस्ड, यू वांट टू मेक फोकस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स दीज रीजन्स। ऑलराइट, सिमिलरली हम लोग ने अपने सॉफ्ट पावर को भी यूटिलाइज किया है। इन टर्मिनोलॉजीज को याद रखिए। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम, सागर विजन क्या है, ठीक है, ये एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, एक्सरसाइज मलाबार में कौन सी कंट्रीज हैं, कॉर्पैट क्या है, कौन सा, ये नाम्स, ये फैक्ट्स, दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर ट्राइंग टू फ्यूज द कंसेप्चुअल एंड द फैक्चुअल पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इंडियन ओशन रीजन की हम पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द मेजर्स दैट द कंट्रीज आर टेकिंग इन ऑर्डर टू fulfill their national interest.
ठीक है, तो प्रोजेक्ट मौसम पे वापस आते हैं। मौसम कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। सॉफ्ट पावर, दो तरह की पावर्स होती है, एक हार्ड पावर होती है और एक सॉफ्ट पावर होती है। हार्ड पावर में आपके आते हैं मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, जो होती है उसको हार्ड पावर में काउंट किया जाता है। सॉफ्ट पावर में होता है जैसे हम लोगों के पास एक नेशनल इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट होता है, योग है, मेडिटेशन है, ठीक है, तो हमारे जो कल्चरल क्विजीन्स हैं, ये सब हमारी सॉफ्ट पावर में आता है। हमारा जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, दैट इज अगेन एन एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मौसम है, इसमें हम लोग बेसिकली जो अपने नॉलेज सिस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, आइडियाज हैं, मैरीटाइम रूट्स के अराउंड जो रिवॉल्व होती हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली मैरीटाइम रूट्स जो हैं, तो इंडिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वी यूज्ड टू हैव चोला डायनेस्टी विच हैड कंट्रोल ओवर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उन सारे नॉलेज को हम लोग साथ में लाकर समझने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू एस्टैब्लिश बेटर रिलेशंस with the neighboring countries, at least our maritime neighbors. ठीक है, वैसे ही we have a vision called Sagar. Sagar is what? Security and growth for all in the region. तो we promote this idea of security and growth for all in the region. तो हम जब देखें तो इंडिया का आइडिया है security and growth for all in the region. And you know, if you look look at it as opposed to China's way of doing things, Belt and Road Initiative, debt trap diplomacy, a lot of countries do not like that kind of diplomacy. A lot of countries do not like that kind of coercion. And India, on the other hand, is trying to project itself as a power on the basis of its soft power, on the basis of sustainable and a kind of development that takes everyone with them. So yes, just Vision Sagar hai, that pretty much talks about that only. Similarly, we also have something called Indo-Pacific Oceans Initiative. It is nothing but strengthening maritime boundaries. To this end, partnership based on principle of free trade and sustainable use of maritime resources. सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज क्या होते हैं? उसमें फिशरीज आती है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आते हैं, ठीक है, जो मीथेन वगैरह है, अगर कहीं पे सी बेड मीथेन है तो वो सब चीजें वहां पे आती हैं। एंड इंडिया वांट्स that countries must utilize these resources very sustainably without polluting the water, without compromising the needs of the future generations. तो उसके लिए we have Indo-Pacific Oceans Initiative. We also have something called Asia Africa Growth Corridor. Asia Africa Growth Corridor is very important. यहाँ याद रखिए इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जापान के बीच का ये एग्रीमेंट है, इंडियन एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। एशिया और अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना की तरह लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेशन वाले प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो नॉट कोऑर्जन बट कोऑपरेशन। ओके, तो इसको हमेशा लुक एट सी इट एज अगेंस्ट बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने का एक तरीका है, जहां पे इंडिया एंड जापान आर कमिंग टुगेदर। जापान कम्स विद अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। लोग चाइना के जितने रिसोर्सेज इंडिया के पास एट प्रेजेंट नहीं है, बट जापान के पास रिसोर्सेज हैं, बट जापान के पास सेम काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर नहीं है विद अफ्रीकन कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज विच इंडिया हैज। तो वो एक तरह से इंडिया और जापान की जो पावर्स हैं, इंडिया और जापान की जो सिनर्जीज हैं, उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं in order to promote development in Asia and Africa, and also to counter China's coercive PRI project. तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर हमें याद रखना है। इंडिया एंड जापान आर द टू कंट्रीज, यही पूछेंगे वो लोग, इसके बियॉन्ड नहीं पूछेंगे, बट दिस स्टोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर द फैक्ट्स। ऑलराइट, फिर हमने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने चालू किया। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सीडीआरआई, ये दोनों ही अलग अलग यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंसेज में इंडिया ने लॉन्च किया। प्लस आईएसए का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में आईएसए का हेडक्वार्टर्स है, एंड सीडीआरआई का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। ये दो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो इनके हेडक्वार्टर्स याद रखिए, बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है आपको। देन कम्स इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वाज इन न्यूज वंस अगेन। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे पहले आया। बिकॉज ऑफ कोविड हर कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया गया था, एंड बिफोर दैट वी नो दैट प्री कोविड एरा, even now the world is highly interdependent for supply chains. What is supply chain? सप्लाई चेन कुछ नहीं है, अगर एक एप्पल का मोबाइल अगर बन रहा है
तो उसके जो पार्ट्स हैं वो कहीं और बन रहे हैं, असेंबल कहीं और हो रहा है। ठीक है, तो अपनी अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से वो कहीं पे उसके पार्ट्स बनेंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, कहीं पे वो उसको असेंबल किया जाएगा, कहीं पे वो बिकेगा। तो इन सारी चीजें, ये जो पूरा चीज, ये पूरा एक चेन है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल कहीं से आएगा, देन उसको सप्लाई पार्ट्स कहीं पे बनेंगे, वो पार्ट्स जब बनेंगे तो वो असेंबल कहीं पे होंगे, असेंबल होने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगा तो उसका मार्केट कहीं और होगा। तो ये जो पूरा चेन है, ये पूरी की पूरी चेन को कहते हैं सप्लाई चेन। और इस सप्लाई चेन को एक तरह से बहुत बड़ा झटका पहुंचा था, कब? कोविड टाइम्स पे। और कोविड टाइम्स के अलावा भी हमें पता है कि चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कई सारी कंट्रीज फॉर प्रोडक्शन। चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको भी काउंटर करने के लिए दे केम अप विद एन आइडिया कॉल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस। एज द नेम सजेस्ट, सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना है, ताकि वो कोविड जैसे जो इश्यूज हैं उनको भी टैकल कर सकें। और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, India, Japan, Australia are like-minded countries. Why? Because they are democratic countries. They have similar interests. They have similar concerns. Hence, they have come together to form a supply chain resilience initiative. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन सी तीन कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, और इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझ ही गए हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वाज स्टार्टेड. All right, we'll move ahead to next slide. Next slide, India has entered into various partnerships. ठीक है, when you are trying to tackle a big country like China, when you are trying to secure your national interest, you find people who are similarly and who are like-minded, who have similar national interest and who have similar concerns. तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं एक फॉर्मेशन आता है क्वाड, विच वॉज वेरी मच इन न्यूज. क्वाड का पहला इनफॉर्मल समिट भी हुआ है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर. तो इस अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड की चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं हमें पता है, इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया. ये चारों कंट्रीज हमने अभी रिसेंटली एक चीज में और पढ़ी है. वो क्या था? मलाबार एक्सरसाइज. ठीक है, तो मलाबार एक्सरसाइज में हमने क्वाड पढ़ा. तो क्वाड, मलाबार एक्सरसाइज, ये चार कंट्रीज, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. मलाबार एक्सरसाइज में पहले खाली तीन कंट्रीज हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, बट लेटर ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो एडेड इनटू इट. ठीक है, तो अभी वो चारों की चारों कंट्रीज उसमें है. अनदर पार्टनरशिप जो इंपॉर्टेंट है, हमने आसियान के साथ पार्टनरशिप कर रखी है. नाउ रिमेंबर वेरी क्लियरली, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है. Remember this, India is not a member of ASEAN, but India engages with the ASEAN countries. जो 10 कंट्रीज हैं आसियान की, उसके साथ हम एंगेज जरूर करते हैं. ठीक है, वी मिलिट्री लेवल पे भी एंगेज करते हैं, कल्चरल लेवल पे भी एंगेज करते हैं. तो अगेन आसियान इज एन इंपॉर्टेंट. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आसियान, आसियान इज बेसिकली व्हाट? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. आई रिपीट, नॉट साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. अगर हम ये मैप पे जाएं फिर से, जो हमने अभी एक मैप देखा था, स्ट्रेट ऑफ मैलेका. ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ मैलेका है. यहाँ पे जो कंट्रीज लोकेटेड हैं, दे कम अंडर साउथ ईस्ट एशिया, और दीज आर द कंट्रीज दैट प्रीटी मच फॉर्म द पार्ट ऑफ एशियन ऑल्सो. ठीक है, गोइंग अहेड, आसियान के बारे में हम लोग कुछ कुछ चीजें पढ़ लेते हैं. 1967 में बना था. कौन सा डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन. हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? बैंकॉक में ही हेडक्वार्टर्स है. बैंकॉक इज इन थाईलैंड. नाउ टू रिमेंबर दीज कंट्रीज, उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म, एक ट्रिक है यहाँ पे, कि ये 10 कंट्रीज आसियान की कौन कौन सी हैं. हो सकता है वो लोग पूछ लें एग्जाम में, तो इसको याद करने की ट्रिक है टीवी क्लिप्स ऑफ एमबीबीएस. रिमेंबर दिस, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस. टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस. टीवी क्या है? थाईलैंड, वियतनाम. क्लिप क्या है? कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया. पी क्या है? फिलीपींस. ठीक है, ऑफ कुछ नहीं है, एमबीबीएस. एमबीबीएस क्या है? मलेशिया, बर्मा. बर्मा म्यांमार. ठीक है, म्यांमार का एक नाम बर्मा भी है, तो यहाँ पे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है. तो बी इज बर्मा. अनदर बी इज ब्रूने. ब्रूने करके एक कंट्री है वहां पर, वो भी है. एंड देन सिंगापुर. ठीक है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस. दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द आसियान कंट्रीज. अगेन बिम्स्टेक. बिम्स्टेक में क्या है? बिम्स्टेक वाज आल्सो फॉर्म्ड, बिम्स्टेक वाज नॉट फॉर्म्ड इन 1967. दिस इज typological error. This was not formed in 1967. प्लीज गो, एक बार चेक कीजिएगा इसको, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था. हेडक्वार्टर्स ऑफ बिम्स्टेक इज इन ढाका. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ऑल राइट, इफ देर इज अ क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इट इज बिम्स्टेक.
व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्रिज, अगेन हम वो मैप को फिर से देखते हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक सेंस ऑफ इट। हमें पता है ये कौन सा रीजन है, दिस इज, सॉरी, बर्मा उसमें नहीं आता है। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, तो ये जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड साउथ एशिया, और दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। और ये सारी कंट्रीज, कुछ कंट्री साउथ एशिया की, कुछ कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की, यहाँ पे कहीं कहीं पे आता है तो आपका बीमस्टेक। हेंस इट इज कंसिडर्ड एज द ब्रिज, कंसिडर्ड एज समथिंग दैट कनेक्ट्स टू सब कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये हमने इंडो पैसिफिक ओशन पढ़ा, बिम्स्टेक पढ़ा। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ढाका में। ये कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, ये आप प्लीज वेरीफाई कीजिएगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको, कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ है। देन इट इज कंसिडर्ड ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसको याद करने का भी अपना एक तरीका है, बिम्स्टेक नाम में ही उसके कंट्रीज का भी नाम मिल जाता है। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड। अब जो आखिरी दो कंट्रीज बच रही हैं वो है नेपाल एंड भूटान। So this is all about BIMSTEC. BIMSTEC is an organization relevant from Indo-Pacific region perspective. Then there is Indian Ocean Rim Association. रिम एसोसिएशन में खूब सारी कंट्रीज हैं, सबके नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद करिए कि इंडियन ओशन के अराउंड जितनी कंट्रीज हैं सब इसके मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है ईबीन मॉरिशस में। इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1997। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर अबाउट इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। 1997 में फॉर्म हुआ था एंड हेडक्वार्टर्ड इन ईबीन मॉरिशस, ईबीन मॉरिशस। देन देर इज फिपिक। फिपिक का फुल फॉर्म है फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। जो इंडो पैसिफिक के आइलैंड्स हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड फिपिक। इंडो पैसिफिक आइलैंड्स आर आल्सो इन न्यूज। आपने रिसेंटली पढ़ा होगा सोलोमन आइलैंड्स के साथ चाइना ने एक एग्रीमेंट किया है, जिसको लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर नॉट वेरी हैप्पी। तो ये भी न्यूज में था, सोलोमन आइलैंड्स, इंडो पैसिफिक और फिपिक। फिपिक इज इंडिया एंड द इंडो पैसिफिक जो आइलैंड नेशंस हैं छोटे छोटे। इफ यू रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया का जो अगर आप मैप देखेंगे तो ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यू फाइंड छोटे छोटे यहाँ पे खूब सारी आइलैंड्स। तो दिस स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, इनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद इंडिया इज नोन एज फिपिक, इंडिया एंड द पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन। ठीक है, नाउ देर इज न्यू इमरजेंस, एक नई चीज अभी रिसेंट में हमको देखने मिल रही है, इमरजेंस ऑफ मिनी लैटरल्स। मिनी लैटरल कुछ नहीं है, इट इज इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड अ ट्राइलैटरल डायलॉग बिटवीन फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मिनी लैटरल, दिस एन आइडिया कॉल मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, डब्ल्यूटीओ इज अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इज अ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। बाइलैटरल होता है दो कंट्रीज के बीच में। देन देर इज एन आइडिया कॉल मिनी लैटरल्स। मिनी लैटरल है इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, they conducted a small एक dialogue then they have conducted recently, because again we talked about common national interest, common concerns. They have common national interest and common concerns, hence they come together to have a dialogue where in for areas where they can possibly cooperate. ठीक है, तो दिस इज इमरजेंस ऑफ मिनी लैटरल्स, ये भी एक रिसेंट डेवलपमेंट है। हमने फॉरेन कंट्री से जो कोलैबोरेशन था अभी रिसेंटली पढ़ा पीछे, तो फ्रांस का हमने पढ़ा, क्यों फ्रांस इंटरेस्टेड है, ये सब रीयूनियन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया आइलैंड, मेयोट आइलैंड्स, ये सब फ्रांस की टेरिटरीज है इंडियन ओशन में, वेयर फ्रांस वांट्स इट्स टेरिटरीज टू बी प्रिजर्व्ड, देयर सोवरेनिटी टू बी प्रिजर्व्ड। ऑलराइट, देन यूएस के साथ एलईएमओ हमने पढ़ लिया। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, रीलोस, ये हमने रशिया के साथ साइन किया है। फर्दर सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ वी हैव सिमिलर एग्रीमेंट्स। ऑलराइट, फर्दर अहेड एपेक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर particularly about is that India is not a member of APEC. India is not a member of APEC. India is not a member of APEC. I repeat, India is not a member of APEC. 1989 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, सिंगापुर में। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड ऑकस। ऑकस अभी रिसेंटली एक सिक्योरिटी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सिंपल एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, नेम से समझ में आता है ये तो, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। ठीक है, इसका एक तरह से इन तीनों नामों को मिक्स करके उन्होंने ऑकस बनाया है।
ऑकस अगेन फोकस उनका चाइना की तरफ है, ऑल्दो वो ओपनली बोलते नहीं है इस बात को, बट एवरीवन नोज दैट ऑकस इज टारगेटेड टुवर्ड्स चाइना ओनली. अगेन इट वाज इन न्यूज बिकॉज फ्रांस वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. फ्रांस की एक डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ फॉर सबमरीन्स, उसको कैंसिल करके वो डील अब उन्होंने यूएस और यूके ने ले लिया है. तो हेंस फ्रांस वाज वेरी अपसेट अबाउट दिस ऑकस फॉर्मेशन. But ultimately, AUKUS is again formed in order to target China only. So China is clearly very not very unhappy about it. So whatever the reason, AUKUS is in news. AUKUS याद रखिए AUKUS क्या चीज है. Similarly, you have East Asia Summit. East Asia Summit में total 18 members हैं. एक तो ASEAN के 10 members हैं. Then there are 6 members जो कि हैं इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्लस 2 more were added later, that is US and Russia. ठीक है, तो ऐसे इनके टोटल कितने हो गए 18 मेंबर्स. आसियान के 10 मेंबर्स के लिए हमने एक ट्रिक अभी याद करी, टीवी क्लिप ऑफ एमबीपीएस, तो वो 10 मेंबर वो हो गए. 6 मेंबर्स ये आप याद कर लीजिए, और 2 और हैं यूएस एंड रशिया. दैट इज ऑल ईस्ट एशिया समिट. अच्छा, ईस्ट एशिया समिट में एक चीज और याद रखिए, पहली समिट. अच्छा, इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें क्या है, समिट. समिट क्या होता है, पीक, टॉप पे जब आप होते हो तो उसको कहते हैं समिट. पहाड़ की पीक को समिट भी कहा जाता है. तो उसी तरह से समिट जब भी आप देखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, समिट में मोस्टली हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं. इट इज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज समिट. तो ईस्ट एशिया समिट में हमेशा ये जो 18 कंट्रीज हैं, इनके हेड ऑफ द स्टेट, जैसे इंडिया है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद वहां पे अटेंड करते हैं उस इवेंट को. यूएस अगर मेंबर है तो यूएस के जो प्रेसिडेंट होंगे वो खुद उस इवेंट को अटेंड करेंगे. ठीक है, तो दिस इज ईस्ट एशिया समिट. अब अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, रिसेंटली न्यूज में था, क्या था ये, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग. एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो यूएई की एयरफोर्स कंडक्ट कराती है हर साल. दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंडिया आल्सो पार्टिसिपेट, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग. एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं मोस्टली, कहां पर होता है ये, पर्शियन गल्फ रीजन में. कहां पर होता है डेजर्ट फ्लैग, पर्शियन गल्फ रीजन में. इंडिया ने इस बार पार्टिसिपेट किया, यस. कौन कंडक्ट कराता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ठीक है, तो इसका जो 6th एडिशन था उसमें पहली बार इंडिया ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया है. जैसे इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर जाती है, हमेशा याद रखिए इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन अगेन हमने पर्शियन गल्फ रीजन देखा था अभी, जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ रहे थे. पर्शियन गल्फ रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है. किससे कनेक्ट करता है, अरेबियन सी से कनेक्ट करता है. पर्शियन गल्फ रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. जहाँ वहां से निकल कर जाता है, तो वहां कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ईरान, ओमान, यूएई, सऊदी, कतर, बहरेन, कुवैत एंड इराक. ठीक है, दीज आर द कंट्रीज दैट आर लोकेटेड अराउंड द एट द पेरिफेरी ऑफ पर्शियन गल्फ. ठीक है, देन अगेन दिस वाज इन न्यूज. अगर एक क्वेश्चन आता है कि RAA, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट. अब देखिए, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, रीलॉस, RLS, ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं, काम सबके सेम है लेकिन अलग अलग नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. रीलॉस जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में था. RLS सपोर्ट जो था वो इंडिया और फ्रांस के बीच में था. लेमोआ जो था वो इंडिया और यूएस के बीच में था. ठीक है, ये 3 अलग अलग एग्रीमेंट्स थे. प्लस देर इज अ न्यू एग्रीमेंट कॉल्ड रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विच इज बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, क्या है ये, टू कोऑपरेट क्लोजली ऑन डिफेंस टू बॉल्स्टर सिक्योरिटी. देखा हमने अभी देखा इनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है, सिक्योरिटी इन द रीजन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वॉट, राइजिंग चाइनीज मिलिट्री एंड इकोनॉमिक माइट. So everyone is concerned about China's rise. ठीक है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया has also signed a reciprocal access agreement. तो reciprocal access agreement is between जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. यहाँ पे इंडिया का कोई रोल नहीं है. RAA will allow Australian Japanese militaries to work seamlessly. ठीक है, तो these are the organizations we have read. हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडियन ओशन रीजन एग्जैक्टली है क्या. We have discussed multiple agreements. We have discussed the regions that were in news. We have also discussed some of the important organizations in the region. इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, जरूर रिवाइज कीजिएगा, इस स्लाइड को फिर से एक बार देखिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच.